میری بیوی ہر رات سونے سے پہلے اپنے فون کا پاسورڈ بدل دیتی تھی۔ شروع میں نے کبھی دھیان نہیں دیا، مگر پھر میں نے محسوس کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے چھت پر جا کر کسی سے بات کرتی ہے۔ ایک دن جب وہ نہانے گئی تو اس کے فون پر ایک میسج آیا جس میں صرف اتنا لکھا تھا: آج رات وہی پرانا کمرہ کھلا رکھنا۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے، مگر اصل خوف تو اس وقت شروع ہوا جب آدھی رات کو میں نے اپنے ہی گھر کے بند کمرے سے کسی مرد کی آواز سنی: میرا نام ریحان ہے، اور اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ انسان کو سب سے زیادہ کس چیز سے ڈر لگتا ہے تو میں کہوں گا اس لمحے سے جب اسے اپنے ہی گھر میں اجنبیوں جیسا احساس ہونے لگے، کیونکہ باہر کے دشمن کا مقابلہ آسان ہوتا ہے مگر اندر چھپے راز انسان کو خاموشی سے کھا جاتے ہیں۔ میری شادی حریم سے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور نرم مزاج لڑکی تھی۔ شروع میں مجھے لگتا تھا شاید میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں، کیونکہ وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میری ماں کا خیال رکھتی تھی اور گھر کو بڑی محبت سے سنبھالتی تھی۔ ہماری شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے اور زندگی بالکل نارمل چل رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ میں نے اس میں عجیب تبدیلیاں محسوس کرنا شروع کیں۔ وہ پہلے ہر بات مجھ سے شیئر کرتی تھی، مگر اب اکثر خاموش رہنے لگی تھی۔ کبھی موبائل ہاتھ سے نہیں چھوڑتی تھی، رات کو دیر تک جاگتی رہتی اور جیسے ہی میں قریب آتا فوراً فون بند کر دیتی۔ شروع میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، مگر ایک رات میری آنکھ اچانک کھلی تو میں نے دیکھا وہ بستر پر نہیں تھی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور پورے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا، پھر اوپر چھت سے دھیمی آوازیں سنائی دیں۔ میں آہستہ سے سیڑھیاں چڑھا اور دروازے کے پیچھے رک گیا۔ حریم فون پر کسی سے کہہ رہی تھی ابھی نہیں، وہ جاگ جائے گا۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے فون بند کیا اور نیچے آ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے پوچھا اوپر کیا کر رہی تھی؟ وہ فوراً بولی امی کی طبیعت کے بارے میں خالہ سے بات کر رہی تھی۔ اس وقت میں خاموش ہو گیا مگر دل مطمئن نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گھر کے پچھلے حصے والا بند کمرہ بھی اکثر کھلا رہنے لگا ہے، حالانکہ وہ کمرہ برسوں سے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ وہاں پرانا سامان رکھا تھا اور حریم ہمیشہ اس کمرے سے ڈرتی تھی۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ اسی کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بولی میں صفائی کر رہی تھی، مگر اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اسی رات جب وہ نہانے گئی تو اس کا فون بیڈ پر رہ گیا۔ میں نے کبھی اس کا فون چیک نہیں کیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس دن میرا دل بے چین تھا۔ اچانک فون پر میسج آیا: آج رات وہی پرانا کمرہ کھلا رکھنا۔ میرا جسم سن ہو گیا، میری سانس رکنے لگی۔ میں نے جلدی سے فون واپس رکھ دیا، کیونکہ بات اب صرف شک کی نہیں رہی تھی۔ اس رات میں نے سونے کا ڈرامہ کیا۔ تقریباً 2 بجے حریم آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی خاموشی سے اس کے پیچھے گیا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف پچھلے کمرے کے نیچے سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں دروازے کے قریب گیا اور اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اندر واقعی کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا: اب زیادہ دیر یہاں رکنا خطرناک ہے۔ میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں غصے اور خوف میں دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک اندر سے حریم رونے لگی، اور اس نے وہ جملہ کہا جس نے میرے دماغ کو مکمل سنا کر دیا۔ وہ بولی: ریحان کو سچ پتہ چل گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ حریم کی آواز سن کر میرا دل زور سے دھڑکا اور میں چند لمحوں کے لیے دروازے کے باہر ہی جم گیا۔ میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ آخر میرے ہی گھر کے بند کمرے میں آدھی رات کو ایک مرد کیا کر رہا ہے، اور میری بیوی اس سے چھپ کر کیوں مل رہی ہے؟ میرے اندر غصہ بھی تھا، خوف بھی، اور ایک عجیب سا درد بھی، کیونکہ انسان جب شک میں جیتا ہے تو وہ ہر آواز، ہر حرکت سے ڈرنے لگتا ہے۔ میں نے ہمت کی اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ حریم ایک پرانی کرسی کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، جبکہ سامنے ایک دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا جس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، کپڑے بوسیدہ تھے اور چہرہ شدید تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ میں غصے سے چلایا: یہ سب کیا ہے؟ حریم فوراً میرے سامنے آ گئی اور بولی: ریحان پہلے میری بات سن لو۔ مگر اس وقت میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ میں نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا: کون ہو تم؟ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر دروازے کی طرف گئی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا: وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ میں حیران رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے باہر صحن میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔
हरीम के चेहरे पर खौफ फैल गया। वो फौरन बोली, लाइट बंद करो। कमरा फौरन अंधेरे में डूब गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था बाहर वालों को भी आवाज सुनाई दे रही होगी। फिर गेट पर जोर जोर से दस्तक शुरू हो गई। ठक ठक ठक। किसी मर्द की भारी आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैं आगे बढ़ने लगा मगर हरीम ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और पहली बार मैंने इसकी आंखों में ऐसा खौफ देखा जो शायद मौत के खौफ से भी बड़ा था। वो सरगोशी में बोली, अगर अपने दरवाजा खोला तो हम सब मारे जाएंगे। मेरा जिस्म ठंडा पड़ गया। कमरे में मौजूद वो अजनबी आदमी दीवार के साथ लगकर खड़ा था और उसकी सांस बुरी तरह फूल रही थी। बाहर दस्तक मुसलसल बढ़ रही थी। फिर अचानक खामोशी छा गई। चंद लम्हे मुकम्मल सन्नाटा रहा और फिर किसी गाड़ी के दौड़ जाने की आवाज आई। हरीम ने सुकून का सांस लिया मगर उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने गुस्से और उलझन में कहा, अब कोई मुझे सच बताएगा भी या नहीं। वो आदमी आहिस्ता से बैठ गया जैसे इसके जिस्म में जान ही ना बची हो। फिर इसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम सलमान है और मैं हरीम का भाई हूं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं हैरत से हरीम की तरफ देखने लगा क्योंकि इसने कभी किसी भाई का जिक्र नहीं किया था। हरीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, क्योंकि सबको बताया गया था कि ये मर चुका है। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। फिर सलमान ने जो बात बताई इसने मेरे रूंटे खड़े कर दिए। इसने कहा, हमारे वालिद एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे मगर उनके इंतकाल के बाद चचा ने सारी जायदाद हड़पने के लिए हमें रास्ते से हटाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने सबको यकीन दिला दिया कि मैं एक हादसे में मर गया हूं, जबकि हकीकत में उन्होंने मुझे अगवा करवा दिया था। मैं खामोश खड़ा सुनता रहा। सलमान बोला, मैं कई साल उन लोगों के कब्जे में रहा, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकला हूं मगर अब वो मुझे दोबारा ढूंढ रहे हैं क्योंकि अगर मैं जिंदा साबित हो गया तो सारी जायदाद और कारोबार का केस दोबारा खिल जाएगा। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मैंने हरीम की तरफ देखा। वो रोते हुए बोली, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी मगर मुझे डर था कि कहीं आप भी खतरे में ना आ जाएं। इसी लम्हे अचानक घर की ऊपर वाली खिड़की जोर से बंद हुई। हम तीनों चौंक गए क्योंकि हम सब नीचे मौजूद थे और ऊपर कोई नहीं था। फिर सीढ़ियों से आहिस्ता आहिस्ता किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। मेरे जिस्म के रूंगटे खड़े हो गए क्योंकि घर के मैन गेट को हम अंदर से लॉक कर चुके थे और इस वक्त इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं होना चाहिए था। सीढ़ियों से आने वाली कदमों की आवाज ने हमारे जिस्म से जैसे जान निकाल दी थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कमरे के कोने में रखी छोटी सी लैंप की हल्की रोशनी जल रही थी और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रहा हो। हरीम मेरा बाजू पकड़े खड़ी थी। इसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे जबकि सलमान का चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। फिर अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। मैं हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ा। हरीम फौरन बोली, मत जाएं। मगर अब मेरे अंदर खौफ से ज्यादा गुस्सा था क्योंकि मुझे लगने लगा था कि मैं अपने ही घर में कैद हो चुका हूं। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर मुकम्मल अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टार्च जलाई तो सामने दीवार पर लंबा सा साया बना हुआ था। मेरा सांस रुक गया। मैंने टार्च ऊपर की तो वहां कोई नहीं था। इसी लम्हे बाईं तरफ वाले कमरे का दरवाजा आहिस्ता से हिला। चर्रर। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अगले ही लम्हे मेरे हाथ से मोबाइल तकरीबन गिर गया। कमरे के दरमियान में एक आदमी खड़ा था। इसके कपड़े खाक से भरे हुए थे, चेहरा जख्मों से भरा था और आंखें अजीब तरह सुर्ख लग रही थीं। वो सीधा मुझे देख रहा था। मेरे मुंह से बमुश्किल निकला, कौन हो तुम? वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, सलमान कहाँ है? मेरा दिल जोर से धड़का क्योंकि इस आदमी की आवाज में अजीब सी बेजान ठंडक थी। नीचे से हरीम की चीख सुनाई दी। मैं फौरन पलटा और भागता हुआ नीचे आया। हरीम दीवार के साथ लगी कांप रही थी जबकि सलमान का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे इसकी रूह जिस्म से निकल गई हो। वो मुसलसल एक ही बात दोहरा रहा था, ये मुमकिन नहीं है, ये जिंदा नहीं हो सकता। मैंने गुस्से से पूछा, आखिर कौन है वो? सलमान के होंठ कांप रहे थे। वो बमुश्किल बोला, वो फरीद है। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ क्योंकि यही नाम हरीम ने एक बार डरते हुए लिया था। सलमान ने कांपती आवाज में कहा, फरीद हमारे चचा का आदमी था, वही जिसने मुझे अगवा किया था, मगर 3 साल पहले इसकी मौत हो गई थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। इसी लम्हे ऊपर से भारी कदमों की आवाज दोबारा आने लगी।
ठक ठक ठक। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रहा था। हरीम रोने लगी। सलमान पीछे हटता जा रहा था जैसे इसका सबसे बड़ा खौफ हकीकत बनकर सामने आ गया हो। फिर वो आदमी सीढ़ियों के आखिरी हिस्से पर आकर रुक गया। अब मैं इसे साफ देख सकता था। इसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे और आंखों में अजीब सी सर्दी थी। वो सीधा सलमान को देख रहा था। फिर इसने आहिस्ता से कहा, तुम्हें इस रात मर जाना चाहिए था। हरीम जोर से चीखी जबकि मेरा खून खौल उठा। मैं आगे बढ़ा और गुस्से से कहा, तुम हो कौन, आखिर चाहते किया हो? वो आदमी हल्का सा हंसा और उसकी हंसी सुनकर मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो किसी नॉर्मल इंसान की हंसी नहीं थी। वो बोला, मैं वो हूं जिसे तुम लोगों ने दफन कर दिया था। कमरे में खामोशी छा गई। फिर इसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। मैंने तस्वीर उठाई और अगले ही लम्हे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई क्योंकि तस्वीर में हरीम के वालिद खड़े थे और उनके साथ एक छोटा लड़का था जो बिल्कुल सलमान जैसा लग रहा था। मगर तस्वीर के पीछे लिखा नाम सलमान नहीं था बल्कि फरीद था। मेरे हाथ कांपने लगे क्योंकि अब मुझे एहसास हो रहा था कि इस घर में जो सच छुपा हुआ है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तस्वीर मेरे हाथ में कांप रही थी और मेरा दिमाग जैसे सुन्न हो चुका था क्योंकि जिस लड़के को मैं सलमान समझ रहा था तस्वीर के पीछे इसका नाम फरीद लिखा था और सामने खड़ा वो आदमी जिसे सब मुर्दा समझ रहे थे मुसलसल हमें ऐसे देख रहा था जैसे बरसों से इस लम्हे का इंतजार कर रहा हो। हरीम की सांसें तेज हो रही थीं। वो बार बार सलमान की तरफ देख रही थी जबकि सलमान का चेहरा पसीने से भीग चुका था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ये सब क्या है? कमरे में कुछ लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। फिर अचानक सामने खड़ा आदमी हंस पड़ा मगर इस बार उसकी हंसी में दर्द ज्यादा था। वो आहिस्ता से बोला, क्योंकि तुम सब ने हमेशा गलत इंसान पर यकीन किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हरीम चीख कर बोली, बस करो फरीद। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का क्योंकि पहली बार उसने इस आदमी को नाम से पुकारा था। फरीद ने हरीम की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सच छुपाते छुपाते तुम लोग खुद भी झूठ पर यकीन करने लगे हो। मैं फौरन सलमान की तरफ मुड़ा मगर वो नजरें झुका चुका था। फिर इसने आहिस्ता से कहा, रेहान मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। इसकी आवाज में वो एतमाद नहीं था जो पहले था। वो सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से सर पकड़ लिया जैसे बरसों का बोझ अब इससे उठाया नहीं जा रहा था। फिर इसने वो हकीकत बताई जिसने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली। वो बोला, मेरा असल नाम सलमान नहीं कामरान है। मेरा सांस रुक गया। वो बोला, मैं उनके वालिद के कारोबार में मुलाजिम था। फरीद और हरीम बचपन से बहुत अमीर थे मगर उनके चचा लालची इंसान थे। वो पूरी जायदाद चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फरीद को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। मैं खामोशी से सुनता रहा। कामरान बोला, इस रात फरीद को अगवा किया गया मगर हादसा ये हुआ कि गाड़ी खाई में गिर गई। सब लोगों ने समझा कि फरीद मर चुका है मगर हकीकत में वो जिंदा बच गया। मैंने हैरत से फरीद की तरफ देखा। इसकी आंखों में बरसों की नफरत भरी हुई थी। कामरान ने रोते हुए कहा, चचा ने मुझे बहुत पैसे दिए और कहा कि मैं सलमान बनकर रहूं ताकि बाद में जायदाद पर कब्जा आसान हो जाए। हरीम जोर जोर से रोने लगी। वो बोली, मुझे कई साल बाद हकीकत पता चली थी मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो ये लोग फरीद को वाकई मार देते। मेरा दिमाग घूमने लगा, यानी जिस शख्स को मैं हरीम का भाई समझकर घर में छुपा रहा था वो असल में एक धोखेबाज था और जिसे सब मुजरिम समझ रहे थे वही असल वारिस था। इसी लम्हे फरीद आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था मगर आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था। वो बोला, मैं 5 साल पागलों की तरह जिंदा रहा, कभी एक शहर कभी दूसरा शहर, सिर्फ इस दिन का इंतजार करता रहा कि कोई एक बार मेरी बात सुन ले। फिर इसने हरीम की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, मगर तुमने भी मुझे मुर्दा मान लिया था। हरीम जमीन पर बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझे लगा तुम वाकई मर गए हो। फरीद की आंखों में पहली बार नमी नजर आई। फिर अचानक बाहर जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आई। हम सब चौंक गए। खिड़की से देखा तो 3 गाड़ियां घर के बाहर आकर रुकी थीं और उनमें से मुसल्लाह आदमी बाहर निकल रहे थे। कामरान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि अब यह सिर्फ एक खानदानी राज नहीं रहा था बल्कि मौत हमारे दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। और अगले ही लम्हे घर का मैन गेट जोर से टूटने की आवाज आई। मैन गेट टूटने की आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा घर लरज उठा। हरीम चीख कर मेरे करीब आ गई जबकि कामरान के हाथ बुरी तरह कांपने लगे और फरीद खामोशी से दरवाजे की तरफ देखता रहा जैसे इससे पहले ही मालूम हो कि ये लम्हा आने वाला है। बाहर से कई आदमियों के कदमों की आवाजें आ रही थीं।
ठक ठक ठक। हर कदम मौत की तरह करीब महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद किया, मगर दिल जानता था कि अगर वो लोग वाकई हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये लकड़ी का दरवाज़ा ज्यादा देर नहीं रोक सकेगा। हरीम रो रही थी और बार बार कह रही थी ये सब मेरी गलती है, अगर मैं पहले सच बोल देती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। फरीद ने पहली बार नर्म लहजे में कहा, नहीं, असल गलती इन लोगों की है जिन्होंने लालच में रिश्ते मार दिए। इसी लम्हे बाहर से आवाज आई, फरीद बाहर निकल, वरना अंदर सब मारे जाएंगे। कामरान जमीन पर बैठ गया, इसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। वो रोते हुए बोला, मैंने सिर्फ पैसों के लिए ये सब किया था, मुझे नहीं मालूम था बात यहां तक पहुंच जाएगी। मुझे पहली बार इस पर गुस्से से ज्यादा तरस आया, क्योंकि बाज लोग वक्ती लालच में ऐसी आग लगा देते हैं जो आखिर में उन्हें भी जला देती है। बाहर वाले मुसलसल दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। फरीद ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोला, रेहान एक काम करो। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। वो बोला, मेरे फ़ोन में सब सबूत मौजूद हैं, वीडियोज़, दस्तावेज़ात और आवाज़ें। अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो ये सब पुलिस तक पहुंचा देना। मेरा गला खुश्क होने लगा। मैंने कहा, तुम क्या करने जा रहे हो? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वो बोला, कभी कभी एक आदमी को पूरा अंधेरा खत्म करने के लिए खुद सामने जाना पड़ता है। हरीम फौरन इसके सामने आ गई और रोते हुए बोली, नहीं, मैंने तुम्हें एक बार खोया था, दोबारा नहीं खो सकती। फरीद ने पहली बार अपनी बहन के सर पर हाथ रखा। वो बोला, तुमने मुझे नहीं खोया था, तुम्हें झूठ बोलने वालों ने मुझसे दूर किया था। इसी लम्हे दरवाज़ा जोर से हिला और लकड़ी टूटने लगी। फरीद ने गहरी सांस ली और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं इसे रोकने ही वाला था कि इसने मुझे एक नज़र देखा और बोला, अब डरने का वक्त खत्म हो गया है। फिर इसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर 4 आदमी खड़े थे और उनके पीछे हरीम का चचा मौजूद था। इसके चेहरे पर नफरत भरी मुस्कुराहट थी। इसने फरीद को देखते ही कहा, मुझे मालूम था तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। फरीद खामोश खड़ा रहा। फिर अचानक इसने जोर से कहा, सब कुछ खत्म हो चुका है, पुलिस रास्ते में है और सारे सबूत उन तक पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही चचा के चेहरे का रंग बदल गया। इसी लम्हे दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। बाहर खड़े आदमियों में भगदड़ मच गई। चचा गुस्से से चलाया, तुम सब ने मुझे धोखा दिया। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद मिनट बाद पूरा घर पुलिस से भर गया। कामरान ने भी सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया और वो तमाम राज बता दिए जो बरसों से दफन थे। हरीम मुसलसल रोती रही, जबकि फरीद खामोशी से खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे बरसों बाद उसके दिल का बोझ हल्का हुआ हो। कुछ महीने बाद अदालत ने सारी जायदाद वापस फरीद और हरीम के नाम कर दी और उनके चचा को उम्र कैद हो गई। कामरान ने जेल जाने से पहले एक बात कही जो आज तक मेरे जहन में गूंजती है। इसने कहा, इंसान पैसों से अमीर नहीं होता, सुकून से होता है, और मैंने चंद नोटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आज कई साल गुजर चुके हैं, फरीद अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। हरीम के चेहरे पर भी बरसों बाद सुकून वापस आया है, और मैं जब कभी इस रात को याद करता हूं तो एक बात जरूर सोचता हूं। बाज औकात सबसे खतरनाक दुश्मन बाहर नहीं होते, वो अपने ही होते हैं, जो लालच में इंसान को जिंदा होते हुए मुर्दा बना देते हैं। मगर सच चाहे कितने साल दफन रहे, एक दिन जरूर वापस आता है, और जब सच वापस आता है तो बड़े बड़े चेहरे बेनकाब हो जाते हैं।